but here I am making this video and I know they are going to throw chappals at me after watching this video. You can use any hand sanitizer also. Yeah, this is a like jugaad sort of thing. Hey guys, this is Vanya Mishra and welcome back to my YouTube channel. So today's video is going to be all about face shaving, or how do you shave your face. And yes, I know that there are a lot of videos out there on YouTube about face shaving or eyebrow shaving, etc. But I so wanted to make a video of my version, so yes, here it is. But before jumping into the video, if you are new to my channel, then please do not forget to subscribe to it and also click on that bell button so that whenever I upload a video, you always get notified. So yes, without any further ado, let's quickly jump into the video. Okay, so let me quickly tell you all that it has only been 2 to 3 months since I have started shaving my face, and उससे पहले मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी about all those myths कि अगर आप अपना फेस शेव कर देंगे तो आप लोगों की भी दाढ़ी मूंछ आ जाएगी आपके पापा या भाई की तरह. बट आप लोग मुझे देख सकते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, राइट. यू माइट फील दैट योर हेयर्स आर ग्रोइंग अ बिट डार्कर एंड दैट इज बिकॉज जब आप फेस शेव करते हैं, कहीं पे भी आप शेव करते हैं, तो जो आपके हेयर्स होते हैं वो रूट से ना जाते हुए सरफेस से कट होते हैं. तो जब वो सरफेस से कट होते हैं एंड जब वो उसके बाद वापस से ग्रो करते हैं तो वो ब्लंट होते हैं टॉप से, एंड दैट इज द रीजन यू फाइंड इट डार्क एंड थिक. बट एक्चुअली इट इज नॉट डार्क और थिक, क्योंकि जब वो रूट से कट ही नहीं हुआ है, देन हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि वो डार्कर या थिकर आएगा. सो ये तो एक मिथ है बहुत बड़ा, क्योंकि हमें बचपन से दिमाग में ये चीज भर दी गई होती है कि अगर आप शेविंग करोगे अपने बॉडी की या फेस की तो आप बिल्कुल आदमी बन जाओगे. बट इट इज नॉट द केस एंड लाइक नॉट विथ मी. So yes, and I won't even say that it is compulsory for everyone to do this. But अगर आप लोग मेकअप का शौक रखते हैं मेरी तरह, then face shaving will really help you to get a flawless base. And अगर आप लोगों के साइड लॉग्स बहुत ज्यादा हैं, देन इट्स बेटर दैट यू डू फेस शेविंग घर पे ही rather than going to those parlor and those painful face packs. एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज सच अ पर्सन जो हमेशा अपने फ्रेंड्स को या अपनी बहन को बोलेगा कि प्लीज कभी भी शेव मत करना वरना तुम्हारे बाल बहुत मोटे आएंगे. एंड प्लीज नेवर डू दैट. आई ऑलवेज एनकरेज माई फ्रेंड्स टू go for waxing instead of shaving. But here I am making this video and I know they are going to throw chappals at me after watching this video. But I never knew that this experience is gonna be like so good, and so I never knew that because I've never tried it on me. But after watching a lot of YouTube videos and after like watching a lot of influencers doing this, I thought of doing it one day, and उसको करने के बाद my face was so soft and smooth. Like अब तो मुझे ऐसा लगता है कि every girl should shave their face like once in a month or so. And I won't suggest you to like completely shave off your face in one go. I would suggest you to do a patch test इधर पे थोड़ा सा and see how your skin reacts. And I'm going to give you some pre and post shaving tips that is gonna really help you to avoid some acne bumps or some whiteheads on your skin, because कुछ लोगों को ये भी शिकायतें आती हैं शेविंग के बाद. And today we are just gonna talk about face shaving. We are not going to talk about body shaving. वो एक different video के लिए रखते हैं, so क्योंकि उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है. सो यस, चलिए मैं आपको कुछ प्री एंड पोस्ट टिप्स बता देती हूँ. सो सबसे पहले let me tell you all that if you are a dry skin type, then never ever dry shave your face. Like you always have to use a moisturizer or aloe vera gel before shaving your face. And that is because dry shaving से आपकी skin बहुत ज़्यादा irritate हो सकती है and आपको like rashes होने के chances बहुत ज़्यादा हैं. And if you apply a good quantity of aloe vera gel on your face, तो उससे आपका जो like वो razor होता है वो बहुत जल्दी glide करता है and it will give you a flawless shaving experience. So what I like to do is I wash my face with a gentle cleanser and to like remove all the dirt on my face. और उसके बाद I apply a generous quantity of aloe vera gel, ताकि जब भी मैं रेज करूँ अपना फेस तो जो like मेरी स्किन है वो easily glide कर सके और मेरी स्किन में रेड रैशेस भी ना हो. और अगर आपका रेजर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो प्लीज़ डोंट यूज इट, जस्ट थ्रो इट अवे, क्योंकि इट्स योर फेस. और जो टिंकल के रेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं, तो यू कैन चेंज इट मोर ऑफ्टन. लाइक डोंट जस्ट यूज वन रेजर फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, बिकॉज
दैट विल डेफिनेटली गोना गिव यू बम्स ऑन योर स्किन, बिकॉज जब आपकी जो रेजर की ब्लेड होती है वो ब्लंट हो जाती है तो नॉट रिमूव योर हेयर्स प्रॉपरली एंड देन यू विल एंड अप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, तो उसकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है. सो आई सजेस्ट यू टू लाइक चेंज योर रेजर आफ्टर हर 5-6 बार यूज करने के. Okay, so the razor which I like to use is this Tinkle one, and it comes with a cap like this, और ये बहुत ज़्यादा cheap होते हैं. Like ये 3 का pairs आता है around 100 or 120 something. ये आपको किसी भी online site पर मिल जाएंगे, and I know you all must have like seen it many times. So even I use this kind of, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं होते हैं कि आपकी स्किन को कट कर सकें, एंड बहुत ज़्यादा जेंटल और ईजिली आपके पीच फस को रिमूव कर देते हैं. So always sterilize your razor before using, and for sterilization you can just use some micellar water in a cotton pad, और उसको आप अच्छी तरीके से अपने रेजर को उससे पोंछ सकते हैं. So in that way सारे ही बैक्टीरिया और जितने भी जर्म्स हैं वो इससे चले जाएंगे, and then you can easily do it on your face. And अगर आपके पास micellar water नहीं है तब भी कोई बात नहीं, यू कैन यूज एनी हैंड सैनिटाइजर ऑल्सो. या दिस इज अ लाइक जुगाड़ सॉर्ट ऑफ थिंग. आप हैंड सैनिटाइजर से भी ये सेम प्रोसेस कर सकते हैं, एंड दैट थिंग विल ऑल्सो वर्क. सो यस, सो फॉर पोस्ट शेविंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू ऑल दैट कि जैसे ही आप अपनी रेजिंग खत्म करते हैं, जस्ट डोंट डायरेक्टली गो एंड वॉश योर फेस, रादर अप्लाई एलोवेरा जेल अगेन ऑन योर स्किन, ताकि अगर आपकी स्किन पे कुछ भी हार्श इफेक्ट हुआ है उस रेजर की वजह से, तो इट विल काम इट डाउन, इट विल कूल इट डाउन, इट विल गिव यू अ कूलिंग इफेक्ट, एंड लीव दैट एलोवेरा जेल फॉर एटलीस्ट 10 minutes, एंड उसके बाद यू कैन यूज अ जेंटल क्लेंजर टू क्लेंज योर फेस. एंड अगेन आफ्टर क्लेंजिंग योर फेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर फेस प्रॉपरली, क्योंकि आप लोगों ने आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा हार्श रेजर यूज किया होता है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट मॉइस्चराइजेशन बैक टू योर स्किन. सो इसी वजह से मुझे कभी भी अपने फेस पे एक्ने नहीं होता, शेविंग की वजह से स्पेशली. और मेरा एक्सपीरियंस हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्मूथ रहा है, एंड अभी मैं कुछ आगे क्लिप्स में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, लाइक हाउ आई शेव माई फेस. कुछ डेमो क्लिप्स मैंने ऐड करी हैं. एंड for eyebrows I really like to pluck my eyebrows, like नीचे की eyebrows I do pluck it out because रेजर से completely eyebrows नहीं निकलती हैं. So yes, but eyebrow के top portion को I just like to glide it through. You'll see it in the upcoming slides. So yes, अब आप डेमो देख लीजिए that how I shave my face. सबसे पहले मैं अपने फेस पे बहुत ज़्यादा एलोवेरा जेल लगाती हूँ ताकि शेविंग की वजह से मेरे फेस पे बिल्कुल भी एक्ने बम्प्स ना हो. और उसको लगाने के बाद ये टिंकल रेजर्स की हेल्प से मैं अपने अपर लिप्स करना पसंद करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि वहाँ का सरफेस इवन होता है तो ईजिली सारे हेयर्स रिमूव हो जाते हैं. एंड उसके बाद आईब्रोज करने के लिए यू रिक्वायर अ प्लकर एंड अ स्मॉल सिजर एंड अ मस्कारा ब्रश. एंड इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव अ मस्कारा ब्रश, यू कैन यूज़ एनी कोम्ब जस्ट टू कोम्ब योर ब्राउज. और आई लाइक टू यूज़ अ प्लकर टू लाइक प्लक माई इनर ब्राउज, और इट्स डिफ़िकल्ट टू शेव इट विद द हेल्प ऑफ अ रेजर, सो आई प्रेफर यूजिंग अ प्लकर. और इस स्टेप को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम लें, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी स्किन भी प्लकर के साथ प्लक हो जाती है. तो जस्ट टेक योर टाइम while doing this step. एंड उसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ के स्टार्टिंग वाले जो हेयर्स होते हैं उनको सिज़र्स की हेल्प से शेप में कट कर लेती हूँ. एंड उसके बाद मैं रेज़र को ले करके अपने आईब्रो को ऊपर से अच्छी तरीके से शेप देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे शेप देना इजी होता है. सो यस, और आप मेक श्योर करिए कि आप अपने रेज़र को ज़्यादा नीचे तक ना लेके हैं, अदरवाइज़ चांसेस हैं कि आपकी आईब्रो पे कट भी लग सकता है. सो जस्ट मेक श्योर टू लाइक डू इट वेरी वेरी केयरफुली. एंड साइड लॉक्स के लिए आप अपनी स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करिए और हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में अपने रेज़र को धीरे धीरे ग्लाइड करिए. एंड अगर आपके फेस पे कोई एक्टिव पिंपल है तो अवॉइड करिए अपने रेज़र को उस पर टच होने से. एंड आप देख सकते हैं मैं बहुत ही धीरे धीरे रिमूव कर रही हूँ, और मुझे अपने साइड लॉक्स ज़्यादा रिमूव करना पसंद नहीं है, तो मैं अपने एक्स्ट्रा हेयर्स को फिंगर्स की हेल्प से ऊपर पिक कर लेती हूँ. एंड उसके बाद मैं रेज़र को चलाती हूँ ताकि जितना भी पीच फज़ है वो एक ही बार में रिमूव हो जाए. एंड ट्राई नॉट टू डू इट लाइक सेवरल टाइम्स.
फेस शेव करने के बाद मेक श्योर टू अप्लाई अ लॉट ऑफ एलोवेरा जेल ऑन योर फेस। मैं वो वाली क्लिप ऐड करना भूल गई हूँ। एंड 10 मिनट्स वेट करने के बाद ही आप अपना फेस एक जेंटल क्लेंजर की हेल्प से क्लेंस करें। यहाँ पर मैंने एवर यूथ का क्लेंजर लिया है और मैं बहुत ही जेंटली मसाज कर रही हूँ अपने फेस पे एंड उसको कोल्ड वाटर से मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर फेस शॉप की चिया सीड रेंज की मेरी फेवरेट हाइड्रो क्रीम का यूज़ कर रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगाई है ताकि मेरे फेस में अच्छी तरीके से हाइड्रेशन मिल सके। सो यस, So that's it for this video today, guys. I hope you liked it, and please make sure to subscribe to my channel if you already haven't. So let me know in the comment section down below if you are now comfortable with shaving your face, or if you have any more further questions to ask me, you can ask me on Instagram. I'll leave my Instagram handle in the description box so you can check it out there. And yes, until then, see you next time. Bye bye.